सभी की प्रत्येक ध्वनि के बीच माननीय मुख्य Narayana Super Speciality Hospital Shri M.M. Mathavan to kindly join us on the dais. नन्हे दीपक से सजाई बाती चारों ओर प्रखर ज्योति सारे गरे गप्पा जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन The next contestant of the Big Impact Award is Batra Group, जिन्होंने जम्मू में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। With its pan-India presence, Batra Group is a national brand with areas of operation in 7 major sectors, namely healthcare, automobiles, education, exports, oil and gas, financial services, and renewable energy. The Batra Group are a highly diversified global organization with interests in brand licensing, design, sourcing and distribution. Since 1911, Batra Group has come a long way, marking its success across various sectors, and today, Batra Group employs over 3,500 people across its various business verticals. We wish them more power and success. जम्मू शहर अपनी मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, और जहां नाम आए हॉस्पिटैलिटी का वहां नाम आना लाजमी है केसी ग्रुप का। जम्मू में आया शायद ही ऐसा कोई गेस्ट हो जिसने इनकी अनमैचेबल सर्विसेज और खाने का लुत्फ न उठाया हो। 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के पायनियर केसी ग्रुप ने अपनी पहचान सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी बनाई है। केसी रेसिडेंसी होटल, रॉयल पार्क बैंक्वेट, रिवेंटा बैंक्वेट, रिगालिया बैंक्वेट, रिगाले पार्क बैंक्वेट, केसी डाइन इन एंड एक्सप्रेस सालों से जम्मू और बाहर के लोगों के ओकेजन को बनाते आ रहा है और भी खास और भी वाइब्रेंट। Let's celebrate the big impact created by the pioneers of hospitality in Jammu, KC Group. Competitive environment, the need to provide a meaningful education to a large number of children, desirous of growing into educated and liberated human beings, has been fulfilled by Kunwar Rani Ritu Singh with her husband M.K. Ajat Shatru Singh Ji. Ritu Singh is a pioneer in the field of education. She is the first woman to bring a world-class education system to Jammu 25 years ago. With the lowest fee structure impacting lives for generations, आज DPS स्कूल की स्ट्रेंथ 12,000 स्टूडेंट से ज्यादा है। Affiliated with the CBSE and DPS Society in New Delhi, DPS Jammu has become a significant portal of learning and growth of young minds. Ritu Singh is also a hotelier, director at Hari Nivas Palace, Hotel Jammu, an iconic hotel steeped in the history and exemplary services. She is a social entrepreneur. She has undertaken many projects in digital literacy, women empowerment, bridging gaps between rural and urban sectors, and many more.
अक्सर हम लोग ये नाम ब्रांड्स के नाम सुना करते थे, लेकिन इनके पीछे के चेहरे देखने का आज मौका। डायरेक्टर केसी ग्रुप एंड मिस्टर राहुल जंडियाल, कॉर्पोरेट जीएम केसी होटल्स from KC Group, leading hospitality brand of Jammu. Can we please have you on stage? Ladies and gentlemen, right now on stage, Mr. Ritter and Pride, let me invite on stage Kuarani Ritu Singh ji for the category of education and social entrepreneurship. And of course, we cannot forget, ye is the emerging beverage brand of Jammu. Mr. Anshid Wazir. It's again an honor to be inviting Mrs. FM पर हम लोग बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जो एनर्जी को बचाने को लेकर या सोशल इश्यूज को लेकर। तो मैंने एक इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लिया था जिसका नाम था टर्न इट ऑफ, हरकत में बरकत है, कि भाई बिजली को वेस्ट ना करें। तो ग्रूवी जूसेस एंड नेक्स्ट मिसेस पूजा गुप्ता, so Mr. Janit Arora and Mr. Mani Arora, partners of, Mr. Vimal Kumar, MD, Royal Nest, J&K's #1 real estate brand. And may I please request, and next, Mr. Sahil Agrawal, CEO of Shivya Healthcare, best emerging startup. This one goes to Mr. Maloop Singh, producer, director, filmmaker, Darpan Productions. Maloop ji, can we please have you on stage? Currently on Classic Geezers. मुझे एक बारी एक जगह Classic Geezer मिला. So it's an honor to be having us. And let me invite Mr. Gagan Jain and Rahat Jain, MD, on stage from Sri Vardhaman. Mr. Gagan Jain and Mr. Rahat Jain. And then Mr. Rohit Gupta from Legno Furniture, leading interventional pulmonologist of Jammu. Mark. And let me invite Mr. Ankit Sharma and Mr. Shivet Sharma, the partners of Financial Mart. The partners of Financial Mart. Our associates and our presenting sponsors, each one of you. और सामने मुझे कुछ बहुत खास चेहरे नजर आ रहे हैं ऑडियंस में। पद्मश्री बलवंत ठाकुर। इंडिया में जब कभी भी हरिनिवास की बात होती है, अमर महल की बात होती है, तो मुझे ऑफ कोर्स ये पूरी फैमिली के चेहरे नजर आते हैं। So it's really an honor to be standing here for the Big Impact Awards. Sir, I request my business head to kindly honor sir and RJ Rahul and Juhi to give the shawl to sir as a small token of love, sir. Thank you so much for gracing the occasion. बहुत देर से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी यहाँ पे। और अब जैसे जूही कह रही थी कि वी आर हियर टू सेलिब्रेट द जम्मू बिजनेस एंड द बिजनेस इम्पैक्ट, और मुझे लग रहा है कि दिस इटसेल्फ इज अ रीजन इनफ फॉर अस टू सेलिब्रेट, बिकॉज वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग इंडिया बिजनेस टुडे। और ये आयोजन इस समय हो रहा है कि जिस समय विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है, इस बात की पैरवी कर रहा है कि भारत का स्वर्णीय काल गुजर रहा है। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ग्रोथ, इट्स नॉट सिंपली फॉर द सेक ऑफ सेइंग सो और फॉर द रीजंस ऑफ बीइंग पेट्रियोटिकली इमोशनल। जो इस वक्त ग्लोबल बेंचमार्क्स एंड द ग्लोबल पैरामीटर्स, दे आर हेलिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, दे आर सेलिब्रेटिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। एंड सिंस दिस इज एन ऑडियंस of business leaders, industry leaders, I think there can be no better occasion than this
to deliberate on that, to discuss about it. जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं कुछ क्षण में, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात साझा करूं कि इंडिया टुडे इज बीइंग एक्नॉलेज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या 7% पर ईयर। हमें अक्सर जम्मू में बैठ के इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन दूर दराज इंग्लिस्तान और अमेरिका में बैठे हुए लोग इस बात की दाद दे रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और ये बहुत कुछ इसमें से मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, 2014 के बाद आया जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। वी जम्प्ड 40 स्टेप्स अप इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं कह रही, भारत नहीं कह रहा। These are global benchmarks. We were 81 stand, we are now 40. Such a huge quantum jump. Startup की बात कर रही थी अभी जूही। We are, I don't know how many of you are conscious of the fact that we stand number 3 in startup ecosystem in the world. इतनी सारी बातें हमें गर्वमय करने की जिनका हमें एहसास नहीं। Which is almost equal to your 100 crore rupees. और अगर रुपये को कन्वर्ट करें डॉलर में तो 8,000 करोड़। और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, 3, 4, 5 ग्रुप्स मैंने खुद कल्टिवेट किए, ग्रूम किए, फंडिंग करवाई, कमिंग फ्रॉम वेरी प्रिमिटिव बैकग्राउंड। उसकी भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बेंचमार्क की बात करना चाह रहा था। और पिछले 8 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम एक भारतवासी की दुगनी हो गई। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि संतोषजनक भी बात है, हर्षोल्लास और आनंद का भी अनुभव होता है कि कोविड के बाद जब सारा विश्व भारत को बड़ी शंका की निगाह से देखता तो समझते थे कि 140 करोड़ का ये देश अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, वहां महामारी फैलेगी और उसका खमियाजा हमें भरना पड़ेगा। वी आर दी ओनली कंट्री इन दी वर्ल्ड विच सक्सेसफुली मैनेज्ड पैंडेमिक। ना खुद अपना किया, बल्कि 2 साल के भीतर 4 नए वैक्सीन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डीएनए वैक्सीन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेजल वैक्सीन इजाद करके दुनिया को उपलब्ध करवाए। और आज अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसमें हमारी लड़की है गीता गोपीनाथन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रेटिंग कहती है द वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया एज अ ब्राइट स्पॉट। तो जिस तरह से इकॉनमी तलमला गई 50-50 लाख के जनसंख्या के छोटे छोटे यूरोपियन देशों में, उस समय अगर उन्हें कोई आशावाद की किरण नजर आ रही है तो भारत में इंडिया इज द वर्ल्ड ब्राइट स्पॉट एंड दैट गिव्स अस सेल्फ एस्टीम। उससे भी हमारा स्वाभिमान बढ़ा। हाँ, मैं इकॉनमी में नंबर 5 पर है, लेकिन उससे भी बड़ी गौरवमय बात जो कभी आप अपने दर्शकों से साझा करेंगे कि वी हैव ओवरटेकन यूनाइटेड किंगडम। जिस मुल्क ने 200 साल हम पर हुकूमत की, आज हम हर इकॉनमी उससे ऊपर है। अभी कुछ साल पहले तक आप सारे मोबाइल सेट बाहर से लाते थे। टुडे वी आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ मोबाइल चिप्स। मेरे ही विभाग से बनती हुई 7-8 विभाग है मेरे पास इस तरह के, विच आर लिंक टू द स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। वी आर नाउ अमंग द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ मोबाइल चिप्स। डिफेंस में हथियार बाहर से आते थे, आज वी आर एक्सपोर्टिंग 6 times more than what it was about 7-8 years ago। तो ये जितने वैक्सीन, ये जितने इजाद है, देयर ऑल रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। और नए क्षेत्र खोले हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि यहाँ बिजनेस लीडर्स भी बैठे हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, मीडिया से जुड़े लोग भी बैठे हैं। यू कैन बी द सोर्स ऑफ our campaign, of Modi's campaign. You can be the messengers of this new movement to educate this region, which is relatively not gearing up for that kind of awakening. नए क्षेत्र, स्पेस, गोपनीयता में काम करता था हमारा अंतरिक्ष। उसे 2-3 साल पहले जब मैं पहली बार श्रीहरिकोटा गया तो 2014 में एक लॉन्चिंग थी, तो वहां हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण हुआ करते थे चेयरमैन, हमारे मित्र भी थे। तो बोले रात को डॉक्टर साहब ऐसी जगह ले जाऊंगा कि जहां कोई वैज्ञानिक भी नहीं जा सकता, प्रोहिबिटेड एरिया। तो सुबह लॉन्चिंग होनी थी 4 बजे। तो मैंने वहां पहुंच करके कहा कि राधा, आई हैव मेड अ प्रिंसिपल फॉर माई सेल्फ टू लर्न एटलीस्ट 1 new thing every day. What I learned today is that to reach this spot, either one has to be as eminent a scientist as you are, or somehow manage to enter politics and reach here.
लेकिन ऐसा क्यों? जब मोदी जी के आगे बात रखी तो दिस हैज बीन ओपन फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। 3 साल के भीतर हमारे पास 130 स्पेस स्टार्टअप्स है। 3-4 मैंने अपने हाथों से स्काई रूट जो अपने रॉकेट चला रहे हैं, और हमारा स्पेस का जर्नी सोवियत यूनियन और अमेरिका के कितने देर के बाद हुआ। We started our space journey when America and Soviet Union were planning to land a human being on the surface of moon. 1969 में नील आर्मस्ट्रांग वहां लैंड हुए और हम गा रहे थे चंदा मामा दूर के। ये हमारी स्थिति थी। और हमारे युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक सारा भाई बाईसाइकिल पर कैरेज लेके जाते थे, कैरेज पर लॉन्चर। आज कभी अपने प्रोग्राम में जिक्र करिएगा, वही अमेरिका के सैटेलाइट्स हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर रहे हैं। And we have earned and deposited in India state exchequer as much as $56 million US। जिस अमेरिका को देख करके हम चंदा मामा के गीत गाते थे और वो हमारा मजाक उड़ाते थे, द नेशन ऑफ स्नेक चार्वर्स, आज उस अमेरिका के सैटेलाइट्स उड़ा करके हम उनसे पैसे कमा रहे हैं। और ये बच्चे कर रहे हैं, तो वो दूर के बच्चे नहीं, यहीं के हिंदुस्तान के हैं। थोड़ा सा हम अपने कक्ष से बाहर निकलें, ड्रोन्स का ये जो बूट लैब है, एक छोटा सा ग्रुप जिसने बीटिंग दी रिट्रीट आपने देखी पिछले साल, जो 1000 ड्रोन, वो मेरा ही ग्रुप था। एक बेटी है हरियाणा की सरिता, एक बच्चा जबलपुर का, बिहार का। पहले उसको 50 लाख की फंडिंग कराई, उसके बाद तो करते करते लगभग 2 करोड़। दे पुट अप दैट शो 1000 ड्रोन्स इन द स्काई। I think for the first time the beating retreat was seen as such a wide number। उसके बाद वो प्रोफेशनल बन गए। और मुझे 2 ही दिन पहले हैरत भी हुई, गर्व भी महसूस हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि उत्तराखंड के एक आला अधिकारी ने मुझे फोन किया कि साहब वो लड़की है सरिता, बड़ा आपको मान करती है, थोड़ी सी उससे सिफारिश करनी। मैं क्या ना होता है? बोले साहब रेट बहुत ज्यादा लगा रही है, हमने एक फेस्टिवल करना है और वहां पे उसको ड्रोन का शो करने को कहा। उसने कहा साहब देख लीजिए, 200 उड़ाने हैं तो 20 लाख, 400 उड़ाने हैं तो 40 लाख, और अगर 1000 की बात करनी तो 2.5 करोड़। तो फिर मुझे मैसेज देना पड़ा, मैंने कहा बेटे थोड़ा स्लो चल अब तू। यानी क्या इतना एस्पिरेशनल यूथ है इस समय हमारा। थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की और वो दौड़ना शुरू हो गया। मैंने दौड़ने को नहीं कहा था, मैंने सिर्फ चलने को कहा था। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दिल से महसूस होता है कि जब सब कुछ इतना है, इतने सारे आयाम खुल गए, इतने सारे अवसर खुल गए, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हम अभी भी उसी आलम में कि 6000 की नौकरी के लिए धरने बैठे हुए। सन 2047 में हम शिखर पटल पर होंगे जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर और इस तरह के क्षेत्र होंगे जो वैल्यू एडिशन करेंगे हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि वेस्ट सैचुरेट हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो अनएक्सप्लोर्ड रहे, और एक हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे अरोमा रिसोर्सेज, हमारे हर्बल रिसोर्सेज, ये लेवेंडर भी उसी की देन है। और दूसरा होगा हमारा, खैर उसका यहाँ तो संबंध नहीं, लेकिन वहां भी मैंने एक अभियान शुरू किया। हमारे समुद्र तट के ऊपर बसे हुए 10-12 राज्य, उड़ीसा से लेकर, वी हैव 7500 लॉन्ग किलोमीटर कोस्टल लाइन, दुनिया में सबसे बड़ी लंबी। And we have an ocean which is named after the country। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ एक आए थे मंत्री लोग, मैंने कहा did you ever realize your country is Australia, your Australia also known as a country, Australia also known as an island, Australia also known as a continent, but the ocean around not known as Australian ocean। The ocean around me is known as Indian Ocean, क्योंकि मेरे बुजुर्ग बड़े चतुर थे कि कभी ना कभी आने वाली पीढ़ी को समझ आएगा इसके अंदर कितनी अपार संपत्ति छिपी हुई है। जैसे वो पुराने जमाने में जब बैंक खाते नहीं होते तो बुजुर्ग कुछ पेड़ के नीचे दबा जाते थे कि कभी बच्चे पोते नातियां बैठेंगे, देखेंगे आगे पीछे क्या, तो खोद के निकाल लेंगे गहने। आने वाले समय में यही मिनरल्स, मेटल्स, लिविंग नॉन लिविंग रिसोर्सेज इतने बड़े समुद्र में हमारे छिपे हुए, और वहां पर भी हम अगले 2-3 साल के भीतर वी आर गोइंग टू सेंड अ ह्यूमन बीइंग 5000 मीटर डीप इनटू द सी बेड, विच इज द मैक्सिमम सी बेड। तो जब गगनयान ऊपर जाएगा, तो दोनों ही विभाग मेरे पास हैं, और साइंस के भी, और तो गगनयान में एक हमारा हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, लगभग उसी समय उसके थोड़ा बाद
एक हमारा हिंदुस्तानी समुद्र तट के नीचे तक जाएगा। और ये हमारे आने वाले संपत्ति है। और उसमें पहाड़ी राज्य जो हिमालयन राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आज सुबह ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, वो भी इसको लेकर के आई है। मैंने कहा आप भी लेवेंडर शुरू करिए। हिमाचल में नए मुख्यमंत्री आए हैं, स्वयं चल करके दिल्ली आए, कहने लगे और कुछ नहीं कहना, केवल इतना कहना जो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया वही हमारे राज्य में कर दीजिए। हम सरकार देने को तैयार है, माहौल तैयार है, विश्व भी हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है। अब उसमें यह है कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट। अब होता क्या है कि जब भी हम बैठते हैं इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ तो बात वहीं से शुरू होती है, बड़ा माड़ा हाल है जी, कोई नहीं पूछता सही, FM करने अपॉइंटमेंट नहीं दौड़ते। और मुझे समझ नहीं आती, मैंने परसों में राधाबाद में स्टार्टअप्स का कैंपेन करके आया, 1-2 महीने पहले गया था, उसके बाद दोबारा गया तो हमारे युवा मोर्चा के 3 लड़के स्टार्टअप निकल आए और वो कह रहे हैं कि साहब वो बेवकूफ़ बैठे हुए जो नौकरी। क्या हमें ये नहीं समझ आई, पहले हम रोजगार और नौकरी में फर्क अंतर करें। और अगर तनख्वाह याफ्ता नौकरी ही नौकरी है तो वो सरकारी नौकरी है, वो रोजगार नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री देती है रोजगार वो भी तो नौकरी है। तो हम सरकार की तरफ क्यों देखें? खैर कुछ दिक्कतें हैं, बिकॉज इसकी पेक्यूलियर सिचुएशन है। जैसे अब आपका ये कि विचार आया था, उसके भी चर्चा शायद करेंगे ये लोग प्रशासन वाले के, जो नई यूनिट लगती है तो जो रियायत बाहर वालों को मिल रही है या हमारे को नहीं मिल रही, सो देयर शुड बी जस्टिस, उसकी भी शायद ये चर्चा करें। या फिर ये जो नया यहाँ पर निवेश हो रहा है उसमें हेल्थ सेक्टर को सर्विसेज में नहीं रखा हुआ। मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से प्रताप रेड्डी जी को कह करके बोलोगा यहाँ MOU करवाया था 2 साल पहले, अभी वो रुका पड़ा, इसीलिए वो भी कोशिश चल रही है कि उनको भी वो बेनिफिट मिले। दैट अपार्ट वो टीचिंग प्रॉब्लम्स है। क्या फॉर अ मोमेंट आज एक तजुर्बे के तौर पर, प्रयोग के तौर पर हम बात यहाँ से नहीं शुरू कर सकते? हम क्या करें? उसके बाद मांगेंगे भी जरूर, क्योंकि मुझे आपके आशीर्वाद से देश विदेश का एक्सपोजर हुआ है। बड़े बड़े चैम्बर्स में बैठा हुआ, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्बर्स इन द वर्ल्ड इज द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आई स्पेंड क्वाइट अ फ्यू डेज देयर आल्सो। व्हाइट हाउस के बिल्कुल बगल में मल्टीनेशनल बिल्डिंग, उन्होंने अलग अलग कक्ष बनाए हुए, हेल्थ इकोनॉमी का अलग, अर्बन डेवलपमेंट इकोनॉमी का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग। पूरा शोध होता है, फाइंडिंग्स निकलती हैं और वो खुद भी समझाते हैं व्यापार जगत को भी और सरकार को भी कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या कहाँ हम जुड़ सकते हैं। तो जानकारी का माध्यम बने और जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम उसके लिए उपलब्ध है। बिकॉज दिस इज अ पैशन विद मी। आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट स्टार्टअप मूवमेंट बिकॉज आई एम अमेज्ड विद आवर एफर्ट्स। इन अ फ्यू इयर्स वी हैव रीच्ड नंबर 3 इन द वर्ल्ड, बट दिस रीजन इज लैगिंग बिहाइंड। एंड हमारा यहाँ ऑफिस है 13 गांधीनगर। वो कहते हैं साहब मिले नहीं, तो माफ कीजिए, हर घर आने का मौका नहीं हुआ, ना न्योता था। लेकिन हमारा फुल फ्लेज ऑफिस है यहाँ पर, हमारी टीम वहाँ बैठती है। और मेरे ख्याल से वाहिद एक MLA MP होगा ऐसा 70 साल में जिसको सरकार ने कोठी रहने को दी, उसने उसका दफ्तर बना दिया। तो प्लीज मेक मैक्सिमम यूज ऑफ आवर सर्विसेज। और वी हैव एन ऑनलाइन ऑफिस विच वर्क्स एट टेंडर विद द ऑनलाइन ऑफिस इन दिल्ली। यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ उसका फॉलोअप करते हैं। इसीलिए संभव हो सका इतने इतने बड़े ये प्रोजेक्ट लाना। और मैं इसलिए आपको मेकिंग अ हम्बल अपील कि आपको चाहे समझ आए कि ना आए, लेकिन आपकी आने वाली संतान आपको कहेगी कि पिताजी उस समय आपने ये, जब ये बूम चल रहा था, इसमें हिस्सेदारी की होती तो आज हमारा भी भला होता। तो इसलिए अगर हम ये बार बार कहते हैं कि साहब 25 साल के बाद हिंदुस्तान उस शिखर पर होगा, और उस 25 साल तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑन द रिसोर्सेज ऑफ the age group in the 30s and 40s, because they are the ones who would be the architects of India at 100. और जब वो सन 2047 में शताब्दी भारत का जश्न मनाया जाएगा तो उनको ये अवसर है कहने का कि ये हमारे भाग में आया कि हम शताब्दी भारत के निर्माता हैं। और हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए नींव रखी, हम यहाँ तक पहुंचे। जैसे इन 35-40 साल के बाद ये पुरस्कृत हो रहे हैं ये सब सज्जन, वो भी कह सके कि आज से 25 साल पहले इस स्टार्टअप की नींव रखी थी मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भाई ने, और आज 2047 की 100वीं सालगिरह में मैं पुरस्कृत हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो बढ़ावा मिल रहा है किस तरह? नहीं, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आयोजकों को। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ टू सेलिब्रेट द बिजनेस इम्पैक्ट इन जम्मू। और एक ऐसे समय है जब मैं ये कहूँगा द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग इंडिया बिजनेस। इंडिया इज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फेवरेट बिजनेस डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्रमाणित केवल कहने से नहीं हो रहा, आंकड़ों से हो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40 पैदान ऊपर आकर के 81 नंबर से 40 तक पहुंच गए, 41 पैदान ऊपर आए। स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हमारा दर्जा दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वी हैव बीन हेल्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एट द रेट ऑफ 7% ग्रोथ रेट। और विशेषकर कोविड आपदा के बाद जब ये शंका जतलाई जाती थी कि भारत 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, तो विश्व ने देखा जब 50-50 लाख वाले यूरोपीय देश तलबला गए, भारत ने न केवल अपने आप को संभाला बल्कि बाकी देशों के लिए भी वैक्सीन इत्यादि जैसी सुविधा उपलब्ध कराई। और आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कह रहा है कि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ ब्राइट स्पॉट। अर्थात इस समय अर्थव्यवस्था को लेकर के 21वीं शताब्दी में यदि पूरे विश्व को आशावाद की कहीं किरण नजर आती है तो भारतवर्ष। और जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड सरमाए हैं, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारा अरोमा रिसोर्स, हमारे हर्बल, हमारे ओशन रिसोर्सेज, इनको एक्सप्लोर करने का काम मोदी जी ने शुरू किया। और 2014 के बाद मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान लाल किले के परिसर से किया। नतीजा ये कि 350 से बढ़ करके आज स्टार्टअप्स की संख्या देश में 90,000 से अधिक हो गई। 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न हो गए। विडंबना केवल ये है जिसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता होगी कि इस क्षेत्र में उस प्रकार से स्टार्टअप की ये मुहिम पकड़ नहीं ले पाई जिस तरह से कुछ और क्षेत्रों में। अभी हाल ही में हमने खादी का एक्सपोज किया था। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर इस साल हुआ है। 50 करोड़ की सब्सिडीज मात्र जम्मू कश्मीर में वितरित की गई, लेकिन अधिकतर कश्मीर घाटी में। जम्मू में अभी भी मानसिकता में सरकारी नौकरी धर किए हुए। हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो नए विकल्प है इनमें कई अधिक गुना आमदनी उपलब्ध है। उस खादी को लेकर के ही 50 लाख से 1 करोड़ तक कैपिटल दिया जा रहा है। 25 से 35% तक सब्सिडी दी जा रही है। अरोमा मिशन में हैंड होल्डिंग से लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कश्मीर घाटी में हमने फलों को लेकर के सेब का उत्पादन दुगना कैसे करना, उसकी शेल्फ लाइफ लंबी करके देश भर में मंडियों में कैसे पहुंचाना, इसकी सुविधा हमने दी। मैं चाहूँगा आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने, मैसेंजर बने और नौजवानों को इस तरफ रुझान लाने में हमारा सहयोग करें।